Okay, good morning all of you. We are continuing with our Unit 2 transformers, wherein we have already dealt with normal transformers in last few classes, but in this class we are going to study about one special type of transformer which is called as auto transformer. So the next topic for us to deal with is auto transformer. I'll tell why it is called as auto or why it is called as auto transformer basically, but this is your normal transformer which you have studied. Okay, you can see that you have primary side, you have secondary side, V1 as input, I1 which is flowing because of this input V1, and this I1 is flowing in N1 turns on the primary side, and an EMF is induced E1 on primary side, and that because of flux, this I1 produce flux. I have not mentioned here flux phi 1 and phi 2, you can mention it again. So I1 is causing phi 1, this phi 1 will link with the same coil and induce EMF E1, and this phi 1 again links with secondary side and induces E2. Okay, and then you have some current I2 which is flowing out, and terminal voltage of V2 is also available. So this is your normal transformer operation and the figure which is depicting the operation of the transformer. Now we are trying to deal with a special type of transformer called as auto transformer. This is a normal transformer, and when you write auto, the figure looks something like this. Auto transformer has one single winding. Please remember this. The basic difference between normal transformer and auto transformer is auto transformer has a single winding, both primary and secondary in one winding. Okay, whereas in normal transformer you have two sides, primary and secondary side, but in an auto transformer you have primary and secondary sides again both, but on a single winding. So auto transformer is nothing but a transformer with single winding like this, and some portion of this winding common to both sides. You can see that I have a single winding, and some portion, you can see that this portion is common to secondary side and also to primary side. If you see, this is the uncommon portion. ये सिर्फ प्राइमरी साइड के लिए है, ये सेकेंडरी साइड और प्राइमरी साइड दोनों के लिए है, कॉमन पोर्शन हो गया. ठीक है, सो यू कैन सी दैट अ ट्रांसफार्मर with a single winding and some portion of it common to both sides is called as an auto transformer. And another important point here is primary and secondary are both electrically and magnetically coupled. इस केस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर ओनली मैग्नेटिकली कपल्ड. अगर आपको याद है तो हमने ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ते वक्त ये चीज़ काफ़ी बार रिपीट कर करके आपको याद दिलाया है कि ट्रांसफॉर्मर, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर ओनली मैग्नेटिकली कपल्ड. आप देख सकते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली कपल्ड है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है. किसमें? नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में. वेयरएज ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी आर डायरेक्टली कनेक्टेड बिकॉज कॉमन पोर्शन है दोनों का. तो यू कैन सी दैट प्राइमरी साइड का करंट I1 जो है वो ऐसे इलेक्ट्रिकली आप देख सकते हैं कि तार से जुड़ा हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी, और साथ साथ मैग्नेटिकली भी जुड़ा होगा क्योंकि फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा दोनों साइड, और फ्लक्स जो है एक साइड से दूसरी साइड वैसे भी ट्रैवल करेगा इवन विदाउट, क्या कहते हैं, यहाँ पर तो गैप है, यहाँ पर गैप भी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ है प्राइमरी और सेकेंडरी. तो
मैग्नेटिकली कपल्ड तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है। अब इसमें ओनली मैग्नेटिक कनेक्शन, मैग्नेटिक कपलिंग था, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं था। ठीक है, और दूसरी पॉइंट तो मैं यहां लिखूंगा ही कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर डिफरेंट। सो देर आर टू वाइंडिंग्स, यहां पर सिंगल वाइंडिंग, ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, समझ गए? दिस इज वन डिफरेंस। देखिए, ठीक है। सो an auto transformer is nothing but a single winding transformer which has some common portion to both primary and secondary sides। बाकी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन तो सेम है, ट्रांसफॉर्मर का नाम तो इसमें भी है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन तो रहेगा ही, बट कंस्ट्रक्शनली देयर आर फ्यू डिफरेंसेस एंड दीज आर द डिफरेंसेस। ओके, और आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शनली भी मतलब प्रिंसिपली भी K इज इक्वल टू V2 बाई V1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू I1 बाई I2, याद होगा आप लोगों को, है ना? ये याद है, ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसके लिए भी एक बार देखते हैं कि हमें ये मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा, यही मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा प्रिंसिपली ऑपरेशन इज सेम। इसको एक बार ठीक से समझ लीजिए, V1 इनपुट मैंने दिया इस पूरे वाइंडिंग को, ये पता है क्या है एक तरह से ना, आप प्रॉपरली एक बार समझ लें। ऑटो ट्रांसफार्मर में हम करते क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर में हमने मान लो इस पूरे वाइंडिंग में सप्लाई हमने इनपुट की कहां दिया है, पूरा वाइंडिंग में दिया है, लेकिन आउटपुट हम कितना ले रहे हैं, इस वाइंडिंग में से थोड़ा पोर्शन ही आउटपुट ले रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इसे मान लो कि 100 वोल्ट्स दे रहे हैं, तो हम सिर्फ करीब 40 या 50 वोल्ट्स हम ले रहे हैं आउटपुट। क्यों? क्योंकि हम आधा करीब ही हम कनेक्ट कर रहे हैं आउटपुट में। आर यू फॉलोइंग? So it's a kind of, you can see from this figure you can understand this operation। इस फिगर में एक तरह से ये तो स्टेप अप, सॉरी ये स्टेप डाउन वाला फिगर है, ऐसे ही आप स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप अप का फिगर भी बना सकते हैं। ये स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गिव सम इनपुट टू ऑटो ट्रांसफार्मर बट ओनली टेक सम पोर्शन ऑफ इट एज आउटपुट। सो ऑब्वियसली मैं जितना दूंगा उसमें से एक भाग ही मैं बाहर लूंगा, दैट इज नथिंग बट स्टेपिंग डाउन। मैं जितना दे रहा हूं उससे कम ले रहा हूं बाहर, तो वो इसीलिए स्टेपिंग डाउन होता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को अगर बदलेंगे ऊपर नीचे, एक्सक्यूज मी, तो आपका व्हाट यू से आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब आप इसको अगर पूरा यहां तक लोगे तो पूरा पूरा आउटपुट आपको मिलेगा, जितना आउट इनपुट आपने दिया पूरा आउटपुट में मिल सकता है। अगर ये पोर्शन, ये वाला ऊपर का लाइन जो है वो अगर ऊपर है, ठीक है, तो तब स्टेप डाउन नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि आप जब जितना इनपुट दे रहे हो अगर पूरा पूरा आउटपुट ले रहे हैं तो वो स्टेप डाउन नहीं है, वो तो सेम हो गया, इनपुट जितना दे रहे हो उतना ही आउटपुट वोल्टेज भी ले रहे हो। ठीक है, वो तो सेम हो गया, उसको स्टेप डाउन भी नहीं बोलते, उसका स्टेप अप भी नहीं बोलते, है ना। वो 1:1 ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या मतलब है 1:1? मतलब जितना दिया वोल्टेज उतना ही आपने आउटपुट में ले लिया। आर यू फॉलोइंग? स्टेप अप में आप जितना दे रहे हो उससे ज्यादा आप आउटपुट में लोगे, स्टेप डाउन में जितना दे रहे हो उससे कम आप आउटपुट में लोगे। जब वो स्टेप अप भी नहीं और स्टेप डाउन भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितना दे रहे हो उतना ले रहे हो, उसको 1:1 ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, खैर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में आप करेंगे क्या, V1 इनपुट दिया पूरे वाइंडिंग में, I1 इज द करंट फ्लोइंग बिकॉज ऑफ V1 इनपुट, और इनपुट वाइंडिंग जो पूरा है, इनपुट वाइंडिंग, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। ठीक है,
और I1 इज द करंट फ्लोइंग, तो I1 अंदर जाएगा। यहां आने के बाद ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, तो यहां आने के बाद तो डिवीजन है, यहां भी एक पाथ है, यहां भी एक पाथ है, तो I1 में से I2 जाएगा आपके सेकेंडरी साइड में, और बाकी जो है I1 माइनस I2, ठीक है, I1 माइनस I2 आएगा, I1 माइनस I2 नीचे की तरफ आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये पूरा आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। और सिमिलरली और ये जो पोर्शन रह गया ना, ये बीच में ये वाला, ये V1 है, ये V2 है, तो ये V2 हो गया, तो इस पोर्शन का भी अलग वोल्टेज मिलेगा आपको। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला V1 माइनस V2, जैसे आपने इस पोर्शन का करंट को अलग किया है, ऐसे इस पोर्शन का मैं वोल्टेज को अलग कर रहा हूं। टोटल वोल्टेज V1 है, इतना वोल्टेज V2 है, तो ये वोल्टेज जो है V1 माइनस V2 होगा, सिंपल है ना। तो इसमें आपके सारे पैरामीटर्स मैंने नोट करके रख दिया कि भाई ये V1, I1, N1 और ये N2, N2 इज ओनली दिस पोर्शन, ठीक है। और आप बता सकते हैं N1 पूरा पोर्शन है, N2 ये पोर्शन है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना बीच में, इसको आप N1 माइनस N2 बोल सकते हैं, इसका नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो यहां पर ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि N1 तो पूरा प्राइमरी का है, N2 ओनली सेकेंडरी का है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो N1 माइनस N2 होगा। टोटल N1 में से N2 निकाल दोगे तो N1 माइनस N2 टर्न्स हो जाएगा। सिमिलरली टोटल इनपुट वोल्टेज V1 है, ओनली आउटपुट वोल्टेज V2 है, तो जो बचा हुआ वाइंडिंग है उसका V1 माइनस V2 हो गया। सिमिलरली I1 जो है करंट एंटरिंग है प्राइमरी से, और वो डिवाइड होके सेकेंडरी साइड जाएगा I2 ऐसे, लेकिन ये जो करंट है वो I1 माइनस I2 करंट, ठीक है। तो जब ये हो गया है तो अब हम ऐसे ही वो इसका रिलेशन निकाल सकते हैं V1, V2 और इन सब का। तो उसके लिए अब देखिए V2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 माइनस N2। ओनली सेकेंडरी, ओनली प्राइमरी अगर हम कंसिडर करेंगे तो V2 बाई V1 माइनस V2, N2 बाई N1 माइनस N2। और आप देखोगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो V2 N1 माइनस V2 N2 इज इक्वल टू V1 N2 माइनस V2 N2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा V2 N1 इज इक्वल टू V1 N2 और V2 बाई V1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। सो ट्रांसफॉर्मर में भी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी आपका यही प्रिंसिपल, यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है जो ट्रांसफॉर्मर में था, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, यही हो गया, ठीक है। और एक और चीज भी कर सकते हैं, V1 माइनस V2 इंटू I, V1 माइनस V2 इंटू I1 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 इंटू V2। ये क्या है? I1 माइनस I2 इंटू V2। V1 माइनस V2 इंटू I1, दिस इज V इंटू I, ये एक वोल्टेज है, ये करंट है। V इंटू I इज पावर, और ट्रांसफॉर्मर में आपको याद होगा कि पावर इज कांस्टेंट, पावर हियर इज इक्वल टू पावर हियर, मतलब प्राइमरी साइड पावर और सेकेंडरी साइड पावर इज कांस्टेंट, है ना। तो हम कर क्या रहे हैं, ओनली प्राइमरी पावर और ओनली सेकेंडरी पावर सेम रहना चाहिए, तो वही मैं दिखा रहा हूं। V1 माइनस V2 इंटू I1 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 इंटू V2। ये कैसा है, प्राइमरी साइड वोल्टेज इज, ओनली प्राइमरी साइड वोल्टेज इज V1 माइनस V2 इंटू करंट उसमें I1,
ओनली सेकेंडरी साइड वोल्टेज इज I1 सॉरी V2, सेकेंडरी साइड वोल्टेज इज V2 और करंट है I1 माइनस I2. सो यू कैन सी दैट ये दोनों सेम होना चाहिए, ये तो प्रिंसिपल है. तो इसके हिसाब से V1 और इसको सॉल्व करोगे तो आपको फिर V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 ही आएगा, क्योंकि V1 I1 V2 I1 और V2 I1 यहाँ दोनों तरफ कट जाएंगे और आप देखोगे कि I2 माइनस I1 स्टेप डाउन है ना, हाँ राइट. तो यहां पर एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा. क्यों करना है अब बता दूंगा मैं. आपको लग सकता है कि ये माइनस V2 I1, चलो इसको मैं कर ही देता हूं. तो V1 माइनस V2 I1 इज इक्वल टू V2 I1 प्लस V2 I1 माइनस V2 I2. तो एक्चुअली ये दोनों कटना चाहिए, लेकिन यहां नहीं कट रहे हैं क्योंकि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है. यहां पर हमने एक छोटा सा गलती कर दिया है. क्या है कि ये स्टेप डाउन है, तो स्टेप डाउन में I1 माइनस I2 नहीं होगा, क्योंकि I2 माइनस I1 होगा, क्योंकि स्टेप डाउन में करंट, सेकेंडरी करंट ज्यादा होगा. आर यू फॉलोइंग? क्योंकि वोल्टेज को हमने कम कर दिया स्टेप डाउन में, तो करंट ज्यादा होना चाहिए. तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, I2 माइनस I1 होना चाहिए. मैंने तो रैंडमली ले लिया है, बट करेक्टली स्पीकिंग I2 माइनस I1 करंट शुड बी द राइट वन, बिकॉज I2 इज द ग्रेटर वैल्यू देन I1, क्योंकि ये स्टेप डाउन है. तो ऐसे देखा जाए तो ये I2 माइनस I1 होना चाहिए, I2 माइनस I1. और अभी जैसे हम लोग कह रहे थे I2 V2 V2 I2, ये प्लस होगा और ये आपका माइनस होगा और ये दोनों कट जाएंगे. तो V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2. ठीक है, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू I1 बाई I2, और ये भी इज इक्वल टू K है, अगर आपको याद है तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल और ये रिलेशंस तो सेम रहेंगे. ओके ओके, ठीक है. सो यू कैन नोट इट डाउन. यहां पर पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं. मैं रब कर रहा हूं अभी. बट टोटल पावर ट्रांसफर्ड, total power transferred from one side to other side, total power transferred from one side to other side is equal to inductively transferred power. inductively transferred power का मतलब क्या है भाई? यहां पर मीडियम दो है, एक तो इंडक्टिव मीडियम है प्लस कंडक्टिव मीडियम है. याद है ना, ये अभी अभी आज ही हमने बोला है कि इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है, मैग्नेटिकली भी कपल्ड है ऑटो ट्रांसफार्मर में. तो जो भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफर हो रहा था वो तो कंप्लीटली मैग्नेटिकली था, क्योंकि बीच में कनेक्शन इलेक्ट्रिकल था ही नहीं. लेकिन इस केस में यहां इलेक्ट्रिकली भी पावर ट्रांसफर हो रहा है और मैग्नेटिकली भी पावर ट्रांसफर हो रहा है. तो टोटल पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड इज इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर प्लस कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर. समझ गए ना? तो यहां पर दो पावर्स हैं हमारे पास, एक इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर है और एक कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर है. ठीक है, इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर और कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर. अब इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर क्या है? फर्स्ट वन, इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर क्या है? फर्स्ट वन, इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर इज जो सेकेंडरी में हमें इस तरह मिल रहा है इंडक्शन की वजह से. ठीक है, तो वो है I2 माइनस I1, सॉरी I2 माइनस I1 इंटू V2. इतना पावर आपका सेकेंडरी में
इंडक्टिवली ट्रांसफर होने की वजह से मिल रहा है, I2 माइनस I1 इंटू V2। तो इसको आप अगर और थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं V2 इंटू I2 माइनस KI1 लिख सकते हैं, पता है ना, सॉरी KI2। I1 को हम KI2 लिख सकते हैं, तो मैंने वही लिखा। तो ये आएगा V2 इंटू I2 इंटू 1 माइनस K। इसमें कोई डाउट है? तो V2 I2 इंटू 1 माइनस K, और इसको आपको ये भी पता है V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, तो V1 I1 इंटू 1 माइनस K। अब इसमें से आपको समझ में क्या आ रहा है, समझ लीजिए क्लियरली। टोटल पावर जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें दो भाग है, एक तो इंडक्टिवली कपल्ड है, सॉरी इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर है, दूसरा कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर है। अभी फिलहाल हम इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर को समझाना चाह रहे हैं। इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर में I2 माइनस I1 पावर क्या होता है, V इंटू I है। तो इंडक्टिवली I2 माइनस I1 इंटू V2 इज द पावर विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो I2 माइनस I1 इंटू V2 इज इक्वल टू V2 इंटू I2 माइनस I1 को मैंने KI2 कर दिया, फिर V2 I2 बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस K हो गया, और V2 I2 इज नथिंग बट V1 I1। व्हाट इज V1 I1? V1 I1 इज द प्राइमरी साइड पावर। तो प्राइमरी साइड पावर में से पावर को आप 1 माइनस K टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक्चुअली V1 I1 टोटल पावर है इनपुट साइड। अगर ये V1 I1 टोटल पावर है इनपुट साइड, अगर ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर होता तो यही V1 I1 पूरा आपका V2 I2 में मिल जाता जैसे ये होता है। लेकिन अब सेकेंडरी साइड में आपको बंटवारा हो गया, जो पावर मिल रहा है, ट्रांसफर जो हो रहा है, इंडक्टिवली थोड़ा बहुत पावर हो रहा है और कंडक्टिवली थोड़ा सा पावर हो रहा है। तो इंडक्टिवली कितना पावर हो रहा है, V1 I1 इंटू 1 माइनस K टाइम्स हो रहा है इंडक्टिवली। अब अगर हम कंडक्टिवली वाला देखते हैं, मैंने दोनों यहीं पर दिखा रहा हूं। कंडक्टिवली वाला अगर देखते हैं तो कंडक्टिवली को आप क्या कर सकते हो, टोटल इनपुट माइनस, मतलब टोटल जितना आना चाहिए उसमें से अगर आप इंडक्टिवली वाला हटा देंगे, यही तो होना चाहिए। यहां मैंने सिंपल मैथ्स लगाया और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं दिखा रहा हूं मैं। यहां पर मैंने क्या कहा, भाई मुझे पता है कि मुझे V1 I1 बाहर मिलना चाहिए, ये V1 I1 बाहर मिलना चाहिए था आउटपुट में, ठीक है, क्योंकि मैंने V1 I1 इनपुट दिया उतना ही मुझे आउटपुट में भी मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बदले V1 I1 1 माइनस K मिल रहा है मुझे, ठीक है, V1 I1 इंटू 1 माइनस K मिल रहा है। तो जो बचेगा वो कंडक्टिवली वाला होगा। जब ये इंडक्टिवली वाला हो गया तो जो बचेगा टोटल इनपुट V1 I1 में से इंडक्टिवली वाला जो हटा देंगे तो जो बचेगा वो आपका कंडक्टिवली हो गया। तो इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका V1 I1 माइनस V1 I1 इंटू 1 माइनस K। तो अगर आप V1 I1 को कॉमन निकाल दोगे तो ये आएगा इंटू K, मात्र K आएगा, ओनली K आएगा। तो मैथमेटिकली भी ठीक हो गया, देखिए आपको पता चल गया। तो इसके हिसाब से मुझे अगर मेरा इनपुट V1 I1 है तो आउटपुट V2 I2 आना चाहिए, और ट्रांसफॉर्मर के केस में V2 I2 इज नथिंग बट V1 I1, ये भी प्रूव्ड है, हमने पहले भी कर लिया। लेकिन ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या हुआ, ये V1 I1 अकेला मतलब सीधा सीधा नहीं मिल रहा है, V1 I1 दो भाग में मिल रहे हैं, एक V1 I1 इंटू 1 माइनस K प्लस V1 I1 इंटू K। आप देखिए अगर ये सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा,
तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आउटपुट जो मिल रहा है वो दो भाग में मिल रहा है, एक 1 माइनस के जो कि मैग्नेटिकली कपल्ड या मैग्नेटिकली ट्रांसफर्ड पावर है, और जो k टाइम्स है वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर्ड पावर है। आप सॉल्व करके देखिए, v1i1 माइनस k इंटू v1i1, यहां पर प्लस k इंटू v1i1, तो ये हट गया, तो आपका टोटल वही मिल रहा है। फिर ऐड करोगे तो टोटल उतना ही मिल रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इस ट्रांसफॉर्मर में तो टोटल v1i1 जो हम दे रहे हैं वो पूरा पूरा यहां मिल रहा है, सिंपल मैग्नेटिकली ट्रांसफर होके मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बट ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है, मैग्नेटिकली थोड़ा सा हो रहा है और इलेक्ट्रिकली थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, ये भी प्रूफ है कि भाई इसमें दोनों मीडियम है। ठीक है, ये भी एक प्रूफ है। तो ये आपका पावर ट्रांसफर भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्या कहते हैं वोल्टेज ही है इनपुट, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही आपको कराने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर इनपुट 1000 वॉट्स है, इनपुट 1000 है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और अगर k वैल्यू 1/4 है 0.25, तो आप देख सकते हैं कि इंडक्टिवली जो आएगा, इंडक्टिवली पावर जो ट्रांसफर हो रहा है वो होगा आपका इंडक्टिवली पावर जो होगा वो होगा v1i1 मतलब 1000 इंटू 1 माइनस के 1/4, तो ये हो गया 750 वॉट। और कंडक्टिव पावर, कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर ये कितना होगा 100 इंटू के, मतलब 100 इंटू 1/4 दैट इज 250 वॉट्स। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डिवाइड हो रहा है ये पावर। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस टू। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर के थोड़े से बेसिक्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, वो अभी पढ़ना जरूरी है, और वही आज के दिन ऑटो ट्रांसफॉर्मर खत्म हो जाएगा, क्योंकि है छोटा सा टॉपिक है ये, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ा रहा हूं मैं। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का एक एडवांटेज है बहुत अच्छा, उसी को हम हाईलाइट करके अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं रब कर दूंगा क्योंकि अब इसके की जरूरत नहीं है हमारे। फॉर सेम आउटपुट और रेटिंग, for same output or rating and k का वैल्यू भी अगर सेम रखे, for same output or rating and k, auto transformer requires less winding than a 2-winding transformer. This is an advantage of an auto transformer, one of the biggest important advantages of an auto transformer. मतलब for same output, मतलब जितना हमें चाहिए आउटपुट, अगर एक ही आउटपुट के लिए एक ही रेटिंग का और एक ही के वाला अगर हम एक नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर लें, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में आपको जो वाइंडिंग जरूरत पड़ती है वो कम से कम पड़ती है, और नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करेंगे तो ये एडवांटेज हुआ ना, क्योंकि वाइंडिंग जितना कम होगा वाइंडिंग का कॉस्ट उतना ही कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वाइंडिंग का जो साइज कम हो गया तो वेट भी कम हो जाएगा आपका, और वेट और कॉस्ट बहुत मायने रखते हैं ट्रांसफॉर्मर के केस में, है ना। कॉस्ट तो सब में मायने रखता है, बट एक तरह से आपका वेट भी अगर कम हो गया तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है इसको हम थोड़ा सा डिटेली अभी पढ़ेंगे। अगर हम कहें कि द लेंथ ऑफ, ये कहते हैं रिक्वायर्ड लेस कॉपर वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग CU का मतलब कॉपर वाइंडिंग है। एक्चुअली बुक्स में क्या वाइंडिंग के बदले लेस कॉपर करके
बताते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्स लेस कॉपर नॉट वाइंडिंग। बोलने में कॉपर बोलते हैं लेकिन वो एक्चुअली वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुराने जमाने से वाइंडिंग कॉपर से बनता था पहले। आज भी कॉपर वाइंडिंग यूज होता है, ऐसी बात नहीं है, बट एल्यूमिनियम ने भी अपना वो जमा लिया, मतलब डोमिनेंस जमा लिया है। तो एल्यूमिनियम वाइंडिंग भी होता है, कॉपर वाइंडिंग भी होता है। तो वो डिपेंड करता है साइज और रेटिंग और कॉस्ट और एप्लीकेशन के हिसाब से आपका कॉपर या एल्यूमिनियम, बट फिलहाल हम कॉपर का ही वो करके हम बना रहे हैं। तो लेस कॉपर वाइंडिंग, अब लेंथ ऑफ लेस कॉपर वाइंडिंग करके होगा आपको बुक्स में, या लेस कॉपर करके होगा, ठीक है। सो इसको समझने के लिए द लेंथ ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये तो समझते हैं आप लोग, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा आपके ट्रांसफार्मर के डिजाइन में, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा कॉपर की जरूरत होगी, मतलब वाइंडिंग। तो जहां पर भी मैं कॉपर कह रहा हूं वहां पर मैं कॉपर वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, ये बाय डिफॉल्ट आप समझ लेना। तो द लेंथ ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड द एरिया ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि जितना ज्यादा करंट को संभालना है उतना मोटा एरिया, मोटा वाइंडिंग, मोटा तार, मोटा कॉपर लेना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द कॉपर वाइंडिंग रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो द टोटल वेट मतलब और वॉल्यूम भी अगर आप कहेंगे, वेट और वॉल्यूम, लेंथ इंटू एरिया करोगे तभी तो आएगा। सो टोटल वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू n इंटू I। समझ गए? इज प्रोपोर्शनल टू n इंटू I। अगर हम एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, फॉर 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर वेट ऑफ कॉपर इज प्रोपोर्शनल टू N1 I1 प्लस N2 I2। प्राइमरी साइड N1 I1 भाई प्रोपोर्शनल टू Ni है, तो प्राइमरी साइड का N1 I1, सेकेंडरी साइड का N2 I2। तो टोटल वेट ऑफ द कॉपर रिक्वायर्ड इन ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज N1 I1 प्लस N2 I2। अब रही बात हमारी ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, मतलब अभी के, सो फॉर ऑटो ट्रांसफॉर्मर weight of copper is proportional to, for auto transformer weight of copper is proportional to, 2 भाग है ना इसका, अगर मान लो A, B और C, मैं 2 भाग में कर दूं, A, B और B, C, यही तो 2 भाग हुए। तो A, B भाग के लिए देखिए आप 2 भाग है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू N1 माइनस N2 इंटू I1 प्लस BC, AB वाले भाग में N1 माइनस N2 इंटू I1 और BC वाले भाग में I2 माइनस I1 इंटू N2। ये हो गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये 2 वाइंडिंग के लिए, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसी चीज को, हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर वाइंडिंग का जो वेट है या साइज है वो 2 वाइंडिंग से कम है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर divided by weight of copper in 2 winding transformer। 2W का मतलब 2 winding transformer, 2W का मतलब 2 winding transformer। तो 2 winding transformer का जो weight है कॉपर, हमने ये दोनों का रेशियो ले लिया। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो प्रोपोर्शनल है, इनमें कांस्टेंट भी आएंगे, तो आप जब रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट्स आप काट सकते हो, ठीक है।
तो रेशियो की बात जब हो रही है तो सीधा सीधा इन दोनों को डिवाइड कर दो। एक तो ये है कि n1 माइनस n2 इंटू I1 प्लस I2 माइनस I1 इंटू n2, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर हो गया n1 I1 प्लस n2 I2, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो ये रेशियो हुआ, ठीक है। तो अब इसको अगर हम थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखते हैं, तो मैं यहां पर वैसे इस तरफ मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये विजिबल है ना इस तरफ, है। तो अगर मैं यहां पर सॉल्व कर दूं इसको, तो इसका मैं बस मैथमेटिकल वो दिला देता हूं। n1 I1 माइनस n2 I1 प्लस n2 I2 माइनस n2 I1, ये न्यूमरेटर है, एक्सपैंड कर दिया, डिवाइडेड बाई n1 I1 प्लस n2 I2, है ना। ऊपर न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर दिया। अब इसको आप वो करिए थोड़ा बहुत, और n1 I1 प्लस n2 I2, सॉरी n2 I2 माइनस 2 n2 I1, देखिए ये भी माइनस n2 I1 है, ये भी माइनस n2 I1 है, तो माइनस 2 n2 I1 डिवाइडेड बाई n1 I1 प्लस n2 I2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और वो करें, हाँ, इस पोर्शन को इससे डिवाइड करें और इस पोर्शन को इससे डिवाइड करें, तो क्या होगा, ये दोनों अगर एक दूसरे से डिवाइड हो गए, मैं दो पार्ट बना रहा हूं, एक न्यूमरेटर ये, एक न्यूमरेटर ये, तो ये दोनों, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनेंगे तो कट जाएंगे। तो ये 1 माइनस 2 n2 I1 डिवाइडेड बाई n1 I1 प्लस n2 I2, समझ गए ना। मैंने दो भाग करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1 हो गया, 1 माइनस ये हो गया। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 n2 I1 डिवाइडेड बाई n1 I1 और n2 I2 तो सेम हो गए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन और ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी n1 I1 और n2 I2 आर सेम, याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिराइव किया। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं नीचे में इसको भी n1 I1 से ही रिप्लेस कर दूंगा, तो ये 2 टाइम्स n1 I1 हो गया, 2 टाइम्स n1 I1, क्योंकि इसको n1 I1 ही रखा, n2 I2 इज अगेन इक्वल टू n1 I1 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, तो 2 टाइम्स n1 I1 हो जाएगा, वो मैंने लिख दिया। तो ये हो गया 1 माइनस n2 बाई n1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस k, 1 माइनस k। सो आप चाहो तो ये सब नोट कर सकते हैं अभी पॉज करके वीडियो को, क्योंकि मैं अभी रब करने वाला हूं, ठीक है। तो आप पहले लिख के फिर इस तरफ आप भी ये भी लिख लेना। अब मैं इसके कंटिन्यूएशन में यहीं पर दिखा रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट दैट weight of copper in auto transformer is equal to 1 minus k times weight of copper in 2 winding transformer। समझ गए ना ये आप लोग, हमने क्या डिराइव किया है, रेशियो डिराइव किया है। तो दिस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस के, अभी जो भी आया है यहां पर, तो दिस रेशियो इज वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू 1 माइनस के टाइम्स वेट ऑफ कॉपर इन 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। आर यू फॉलोइंग? सो के वैल्यू आप देखिए 1 माइनस के, हाँ के कितना भी हो 1 माइनस के तो डेफिनेटली लेस देन 1 होगा, है ना। और अगर लेस देन 1 है तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से इसका वेट कम ही कम मिलेगा। K का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट जितना भी करेंगे 1 माइनस के इज लेस देन 1 एंड सो द वेट ऑफ कॉपर इन 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को हम एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर मिलेगा, जो कि वेट ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से कम होगा।
That is what we have mentioned here. The auto transformer requires less copper winding than a 2 winding transformer, and that is what we have proved here. ठीक है, that is what we have proved here. और आप ये भी देख सकते हैं कि जितना K ज्यादा होगा उतना इसका वेट कम मिलेगा आपको. सेविंग्स इन कॉपर, savings in copper, higher K, higher savings. savings मतलब कॉपर की कम रिक्वायरमेंट, उसी को हम सेविंग्स कह रहे हैं. मतलब जब कम रिक्वायरमेंट है और जब कम जरूरत है कॉपर का, तो आपने सेव कर लिया कॉपर, मतलब पैसे बचा लिए, इकोनॉमिकली आपने बना दिया ऑटो ट्रांसफॉर्मर को. तो ये बात आ रही है. तो सेविंग्स इन कॉपर कैसे हो रहा है? के हाइयर होगा तो हाइयर सेविंग्स मिलेगा आपको, और लोअर के देन लोअर सेविंग्स. सेविंग्स तो मिलेगा ही, सेविंग्स तब नहीं मिलेगा जब के का वैल्यू 1 होगा. अगर के का वैल्यू 1 है तो कोई सेव नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि के का वैल्यू अगर 1 बन गया तो इसमें वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक तरह से सेविंग्स कुछ नहीं है. वेट ऑफ ये 1 हो गया तो ये 0 हो गया. इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली 0 हो गया, वेट में जो सेविंग्स आप कर रहे हो वो पूरा खत्म हो गया, कोई सेव नहीं कर पा रहे हो. जितना वेट आपका 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में आ रहा है उतना ही वेट आपका नॉर्मल ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी आ रहा है. ठीक है, तो के जितना ज्यादा होगा उतना बेटर सेविंग्स या उतना आप और इकोनॉमिकली कर रहे हैं. तो ये है. सो दिस इज अबाउट ऑटो ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर का है. इसमें कोई डाउट्स हो तो आप मेल कर सकते हैं. फिलहाल के लिए ये, क्योंकि यूनिट खत्म हो रहा है, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर. ऑटो ट्रांसफॉर्मर वाला मतलब ट्रांसफॉर्मर्स का पार्ट हमने खत्म कर दिया यहाँ पर. ठीक है, तो अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से आप 3rd यूनिट इंडक्शन मोटर का स्टार्ट देखेंगे. इंडक्शन मोटर्स के बारे में अब हमने एक स्टेशनरी मशीन पढ़ा है यहाँ पर. इलेक्ट्रिकल मशीन हमने शुरू किया है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर जो सबसे स्टेशनरी मशीन था वो हमने पढ़ा है अभी. अब इसके बाद हम रोटेटिंग मशीन्स पढ़ेंगे, जिसमें इंडक्शन मोटर हम पहले पढ़ेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.